Hello my dear students of standard 9th. Welcome you all in today's online class. My dear students, it is known to you that examination schedule is coming near. So dear friends, all of you must try to make a good efforts in the coming examination, that is term 1. So dear students, term 1 examination will be conducted soon. So all of you must ready for that. All of you have to revise all the contents properly so that you can get good marks in the coming examination. So I hope all of you will get good marks in the coming examination. Definitely you will do the best whatever you have learned so far in the physics. So dear friends, in the physics chapter I have already informed you about the syllabus regarding the syllabus schedule. So there will be 2 chapters will be considered in the examination purpose. So what are those chapters which will be considered as a part of the term 1 examination? So first chapter, that is motion. We will just going to revise the chapter properly. So revision process will be keep on. So first let us know about the revision. What types of the chapters you will have to cover within this short period of time, so that you can go in deep revision and know any doubts. If there is any doubts, then you can clarify your doubts in the live class. So during live class you can put your questions, you can ask your questions regarding the doubts, whatever you have, whatever problems you are facing in each contents, so that I may try to sort out your problems. So first of all, know about that what those chapters which will be considered as a part of the periodic term 1. So term 1 के लिए मैंने 2 चैप्टर आपको बताए. पहला चैप्टर जो आपको लिखा है देखो मोशन, ओके, and next chapter force and laws of motion, that is chapter 2. So 2 chapters will be considered as for your evaluations under the term 1 examination. So all of you must recover, accomplish all these contents properly, so that you can do the best in the examination. And my expectation is very high with you students that you will do the best in the coming examination. So let us start about the रिवीजन प्रोसेस के थ्रू आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ये जो चैप्टर फर्स्ट है मोशन, और मैंने आपको 2 चैप्टर बताया स्टूडेंट्स. चैप्टर 2 दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और ये चैप्टर 1 जो चल रहा है आपका, ये दोनों चैप्टर आपके कंसीडर्ड होंगे टर्म 1 में एग्जाम में. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, रिवीजन के लिए स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन के लिए शॉर्ट में देख लेंगे. वैसे तो इसको मैंने पढ़ाया आपको, फिर से इसको रिवाइज करते हैं. मोशन चैप्टर जैसे आपको पता ही है कि भाई मोशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे. मोशन का मतलब क्या होता है, जिस चैप्टर मोशन है और जो दूसरा हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो ये दोनों चैप्टर जो स्टूडेंट्स आपके हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि पहले ये पढ़ाया जाता है, फिर इसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ाए जाते हैं. चैप्टर 2, तो चैप्टर 1 दिस इज एंड चैप्टर 2 दिस इज द चैप्टर 2. ओके, तो ये चैप्टर 2 आपका है और ये चैप्टर 1 है जो मैं अभी रिवाइज करने वाला हूँ. ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, इन दोनों चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में हम अपना परफॉर्मेंस 100% इफिशियंसी दे सकें, एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें. और कोई प्रॉब्लम होगी तो मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो इस चैप्टर में, तो ऑनलाइन क्लास के थ्रू जियो आपका जो चल रहा है गूगल मीट, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स. और डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू ट्राई टू अटेंड द क्लास. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवॉइडिंग they are not attending the class regularly. So this is the bad habit, and if you are ignoring the class 1, then you can not get marks, because if you are trying to get the good marks, then you should try to make a good effort for that. Effort is required, that is important. तो मोशन चैप्टर में आपका मैं शुरू करने वाला हूँ. मोशन में आपको जो पढ़ाया गया है उसकी कुछ समरी होगी, रिवीजन होगा. तो पहली बात हम लोग यहीं से शुरू कर लेते हैं. मोशन एक्चुअली होता क्या है. मोशन का मतलब है कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है. ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, चेंज कर रहा है. चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन को वो किसी रेफरेंस पॉइंट के थ्रू, दैट इज रेफरेंस पॉइंट हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं. रेफरेंस पॉइंट्स में ट्री, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, कुछ भी जो आपको रोड्स में है, जैसे कार रोड्स में जा रही है, ठीक है, तो हम लोग उसका आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं. या कार में हम खुद बैठे हुए हैं
तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाहर देख करके कि कार मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि जो रोड के साइड बाय साइड जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू हम लोग समझ जाते हैं कि कार किस में है, मोशन में है, क्योंकि अपने पोजीशन को चेंज कर रही है। So there is a one thing which is associated with the motion, that is noticeable. Object must change its position with respect to surrounding, and surrounding that will be taken as the reference point. Reference point जिसे आप frame of reference भी कह सकते हो, locate कर सकते हो. You can locate as a frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बॉडी को रोटेट करा रहे हैं, बॉडी घूम रही है, और बॉडी में भी एनी काइंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका रनिंग व्हीकल्स हो गए, मोटर व्हीकल्स, साइकिल, इवन द एनी मूवमेंट। तो ये आपका हो गया मोशन। जैसे आपको वहाँ भी पता नहीं चलता जब दो प्लेन स्पेस में उड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस में तो कोई रेस्ट पॉइंट तो है नहीं है, ठीक है। दो प्लेन अगर पैरेलल उड़ रही हैं, फ्लाई कर रही हैं, तो आप देखोगे कि अगर दोनों साइड से आप देखोगे, गेस करोगे, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई डिफरेंस पॉइंट नहीं होता स्टूडेंट्स, जिससे हम लोकेट करा पाए और अच्छा अपने आप को इवेलुएट कर सकें कि बॉडी मोशन में है। तो बॉडी अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में जैसे कोई पोजीशन रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट के थ्रू बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, तो हम लोग कहते हैं कि वो बॉडी किसमें स्टूडेंट्स? मोशन में है। अगर रेफरेंस पॉइंट के थ्रू सराउंडिंग्स के थ्रू अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो हम कहते हैं वो बॉडी किसमें है? रेस्ट में है। बॉडी इज इन रेस्ट। इफ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन द बॉडी विल बी सेड टू बी इन द रेस्ट पोजीशन। वो किसमें होगी? रेस्ट में होगी। रेस्ट का मतलब रुकी होगी, ठीक है। और मोशन का मतलब ही होता है गतिशील, गतिमान, हिंदी में इसको गतिमान कहते हैं। मूव कर रही है, ठीक है, रन कर रही है। तो मोशन से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है स्टूडेंट्स। मोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो आई एम गोइंग टू रिवाइज एंड इट इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग इफ यू कंसंट्रेट ऑन दैट। लेट अस नो। अब ये बात आती है कि मोशन को हम लोग समझेंगे कैसे, मोशन को समझ में कैसे आएगा, मोशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कुछ टर्म्स ऑफ मोशन होते हैं, मोशन को समझने के लिए की टर्म्स की बात करेंगे। टर्म्स ऑफ मोशन, टर्म्स ऑफ मोशन, मोशन के टर्म्स की बात करूंगा स्टूडेंट्स। टर्म्स ऑफ मोशन का मतलब है मोशन में कौन कौन से टर्म्स हैं जिनको अगर हम समझ लेंगे तो धीरे धीरे हमको मोशन समझ में आने लगेगा। तो टर्म्स ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो टर्म्स ऑफ मोशन में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें करना है स्टूडेंट्स। तो पहला देखिए, इसमें पहला टर्म क्या आएगा स्टूडेंट्स? पहला आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस। दूसरा इज द सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। सेकंड आपका देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है स्टूडेंट्स, ओके। एंड नेक्स्ट इज द थर्ड इज द देखिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ओके। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन। फोर्थ इज द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। and fifth is a speed and sixth is a velocity। पहले इतना समझ लेते हैं, फिर उसके बाद और चीजें आएंगी और डिस्कस करेंगे। देखिए पहले बात आया डिस्टेंस का, ठीक है, फिर आया देखिए डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब हम समझ जाएंगे अच्छे से, तो धीरे धीरे हमको मोशन टर्म समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। It is very important to understand distance and displacement, and sometimes you often gets confused about that, whether what is a distance and what is a displacement। तो displacement और distance को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, तो आप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, ये यहाँ रहता है, आप यहाँ हो, ठीक, और कोई और एक फ्रेंड है जो यहाँ रहता है, another friend is lying here, ठीक है। तो ये इसके बीच की डिस्टेंस को मैं डॉटेड से दिखा देता हूँ। This is the dotted line drawn here and the students is lying there, ठीक है। तो ये A हो गया स्टूडेंट्स, ये C हो गया, ये B हो गया। अब मान लो कि सपोज करते हैं आपका कोई फ्रेंड है जो यहाँ रहता है सी पोजीशन पे, सी पॉइंट पे, ठीक है। योर फ्रेंड, सपोज दैट योर फ्रेंड इज लिविंग एट पॉइंट सी, ओके, एंड देयर आर 3 पॉइंट्स 1 2 3,
ए बी सी 3 पॉइंट हैं। आई हैव लोकेटेड पॉइंट को थोड़ा सा रेड कलर से कर देते हैं, समझ में आएगा। देयर आर 3 पॉइंट्स, दैट इज ए बी एंड सी। दिस इज सो स्टूडेंट्स स्टार्ट्स हिज जर्नी एंड कवर्स दैट इज द 5 किलोमीटर। ये मान लो 5 किलोमीटर जा रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ से आ रहा स्टूडेंट्स 5 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से फिर आपका एक्चुअल फिर वो कवर कर रहा है, दैट इज अ कवरिंग एक्चुअल डिस्टेंस दैट इज 3 मीटर। ये 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, और 3 किलोमीटर है, ठीक है। और ये आपका है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो देखिए सी तक जाने के लिए कई रास्ते देखिए, पहले ए बी तक जाए, बी से फिर सी तक आए, तो फिर सी से फिर ए तक आ सकता है, अपने जहाँ से इनिशियल पोजीशन अपनी उसने शुरू किया था, अपने पॉइंट को शुरू किया था, जहाँ से अपनी जर्नी शुरू की थी। तो देखिए यहाँ से सी तक आने के लिए इसके पास अभी फिलहाल 2 रास्ते हैं, ठीक है। 2 रास्ते क्या, 3 रास्ते हैं। या तो ये यहाँ से यहाँ तक आए, ठीक है, या तो ए से सी डायरेक्ट ला जाए, या ए से बी तक जाए, ठीक है, बी से सी तक आए। तो यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट्स कि अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा तो टोटल डिस्टेंस अगर ए से बी तक गया, बी से फिर सी तक गया, सी से ए तक गया, तो वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया स्टूडेंट्स? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर्ड होती है, वो उस एक्चुअल पाथ को कवर्ड करता है, ट्रैक करता है, दैट इज डिफाइंड एज द स्पीड, दैट इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस। वो किससे रिलेटेड होती है? डिस्टेंस से रिलेटेड होती है। तो डिस्टेंस एक्चुअल अगर मैं देखना चाहूं कि ए तक आने में उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 5 3 + 4, 5 3 8 8 4 12, यानी वो 12 किलोमीटर अपनी इनिशियल जर्नी से शुरू किया था। बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से फिर ए तक आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया स्टूडेंट्स? दैट इज 12 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो स्टूडेंट्स, वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट जो आपकी होती है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए सी तक उसको जाना है, तो ए से बी तक जाएगा तो 5 किलोमीटर गया, फिर बी से सी तक गया, फिर 3 किलोमीटर गया, तो 5 3 तो 8 हो गए ना सी तक आने में, तो वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। और यहाँ से आप देखिए दैट इज द ट्राइंगल ड्रॉन, दैट इज द टाइप ऑफ ट्राइंगल, दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल, and in which you are looking that AC is a hypotenuse and BC is a perpendicular and AC is a base। तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्टूडेंट्स कि जब इसका स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं, तो AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो देखिए AB इक्वल टू क्या जाएगा? √ इन दोनों के स्क्वायर। देखिए BC स्क्वायर का मतलब क्या है? BC स्क्वायर यानी 9 हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये हो गया 25, ओके, 25 हो गया। तो 25 और 9 कितने हो गए स्टूडेंट्स? हाँ ये हो गया ना, देखिए 5 हाँ। तो यहाँ पे ये बात करूंगा कि AC स्क्वायर जो है, AB स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन, AB स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन ना, AB स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन, यू डोंट नीड टू मेंशन। सो अगर मुझे AB स्क्वायर लेना है ना, तो हम इन दोनों के स्क्वायर करेंगे, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना स्टूडेंट्स? देखिए BC आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16, और ये आपका हो गया 9। 16 9 कितने हो गए? 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। जब यहाँ हम लेंगे AB इक्वल टू 5, देखिए आया है, ठीक है। दिस इज द 5 किलोमीटर। तो ये आपका देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? दैट इज AC। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारा है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन ट्रैक। अब एक डिस्टेंस में आपका क्या है कि जिग जैग मोशन भी है, देखिए यहाँ पे इधर उधर सबको अगर ऐड करेंगे ना, तो डिस्टेंस विल बी कवर्ड। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड्स ऑफ द डायरेक्शन, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ पार्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज रिक्वायर्ड। तो डायरेक्शंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे आपकी क्वांटिटी 2 में बांटी गई हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी आपकी बात करूंगा तो एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। वन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड अनदर इज स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोथ यूजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिस दोनों पे अगर हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई क्वांटिटी उसके थ्रू रिप्रेजेंट होती है, दैट इज रिफर टू द वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी required only magnitude. Magnitude may be the size, okay, size and magnitude का मतलब नंबर, रियल साइज, ये सारी चीजें जोड़ करके लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड केवल रिक्वायर्ड होगा तो दैट विल बी रिफर्ड एज द डिस्टेंस, और दोनों चीज रिक्वायरमेंट होगी दैट इज द वेक्टर। तो वेक्टर और स्केलर के बेसिस पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड। आप देखिए डिस्टेंस में क्या है कि ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई होगी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द टर्म्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकते हैं? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकते हैं? क्वेश्चन ये अराइज कर रहा है, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकते हैं? अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में बात यहाँ पे क्वेश्चन ये हो रहा है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकते हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो भी हो सकती है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती है। तो दोनों इक्वलिटी नहीं हो सकती है, कि जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल हो। समटाइम्स यू सी दैट, जैसे मैं यहाँ पे एक ड्रा करके देखता हूँ, ठीक है, चलिए मैं ड्रा करके दिखाता हूँ। लेट अस ड्रा। जैसे ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है, ठीक है, दिस इज द बी पॉइंट। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर ले लेते हैं, लेट अस टेक 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रीचेस एट बी, एंड देन आफ्टर he reaches at point A from where he has started his journey। जहाँ से इसने शुरू किया था, देखिए A से ये गया ऐसे डायरेक्शन में 5 किलोमीटर, फिर ये रिवर्स आया इधर देखिए डायरेक्शन में, फिर इनिशियल पोजीशन पे आया जहाँ से उसने जर्नी शुरू की थी, एंड दिस इज द डेड लाइन्स। तो अब टोटल डिस्टेंस अगर ऐड करना चाहें तो 5 + 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 + 5। तो 5 किलोमीटर + 5 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ एक्चुअल पाथ? दैट इज 10 किलोमीटर हुआ ना। लेकिन अगर नेट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट में हम देखना चाहें इस पे, व्हाट विल बी द नेट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हियर? दैट इज 0 बिकॉज ही हैज स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन फ्रॉम ए एंड आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट बी, एंड ही हैज started its journey in reverse direction and reaches at finally from its initial position and covers its initial position from where he has started his journey, then the total net displacement there will be 0। क्यों 0 होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज किया है, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन को फिक्स किया है। देखिए अब ये ए और बी, इसलिए मैं लिखा हूँ यहाँ, देखिए ए बी वेक्टर इक्वल टू बी ए नहीं हो सकता है, ठीक है। ए बी वेक्टर कैन नॉट बी रिटन लाइक बी ए, क्यों? इसमें माइनस लगाना पड़ेगा। लेकिन मैथ में देखिए मैग्नीट्यूड में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ए बी इक्वल टू बी ए। जैसे ए इक्वल टू हो गया 4 किलोमीटर, ठीक है, और बी हो गया 3 किलोमीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 इधर आएगा और 4 3 जा 12 इधर आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन मैग्नीट्यूड में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में ए टू बी का मतलब है बी माइनस ए, और ये b माइनस ए दोनों इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि ए बी की ओर जा रहा है डायरेक्शन, और इधर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, b टू a हो रहा है। इसे ए बी का मतलब है कि a से b की ओर डायरेक्शन, और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं? देयरफॉर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट नेगेटिव साइन देयर। सो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो इसमें डिस्टेंस हमने तो ऐड किया था, देखिए ए बी प्लस बी ए, दैट इज फॉर द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस के लिए देखिए 5 किलोमीटर + 5 किलोमीटर, तो कितना है स्टूडेंट्स? 10 किलोमीटर। क्या आया डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट में चेक करते हैं, तो देखिए ए बी प्लस माइनस बी ए,
रिवर्स डायरेक्शन में। ए बी देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 किलोमीटर, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस 5 किलोमीटर। प्लस माइनस दोनों साइन ब्रेक होगा। 5 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर दैट इज 0, दिस विल बी 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 0 हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड डिस्टेंस इज नॉट 0। डिस्टेंस इज नॉट 0 हियर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो इन दैट केस वी कैन नॉट से दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी स्पीड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द टर्म्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बाद अगर आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे स्पीड और वेलोसिटी की ओर। स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए स्पीड जो वर्ड आपने देखिए यहाँ पे लिखा है स्पीड। स्पीड चेक करने के लिए, स्पीड मेजरमेंट करने के लिए देखिए गाड़ी में लगा होता है स्पीडोमीटर, और एक और लगा होता है जिसे कहते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस और स्पीड दोनों को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बाइक वगैरह में, कार में, किसी भी रनिंग व्हीकल्स में लगा होता है एक स्पीडोमीटर, वो स्पीड बताता है। तो स्पीड क्या है एक्चुअल? स्पीड को मैथमेटिकल लिखते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज रिफर टू द स्पीड। तो इसका मतलब एक्चुअल स्पीड में क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम दैट इज रिफर्ड एज स्पीड, ओके। और वेलोसिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में बात करेंगे स्टूडेंट्स, वेलोसिटी में आपका आ जाता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी में आपका क्या कंसीडर होता है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी में आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कंसीडर होता है और स्पीड में डिस्टेंस कंसीडर होता है। डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना कवर्ड हुआ है, ये चीज हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे होते हैं। तो वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और वेलोसिटी ऐसे हम लोग पता करेंगे। वी विल डिस्क्राइब अबाउट द टर्म्स स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी की बात करता हूँ। तो स्पीड और वेलोसिटी ऐसे हम लोग निकालते हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला विच यू हैव टू अप्लाई टू कैलकुलेट द स्पीड। यूनिट क्या होगी स्पीड की? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? एसआई यूनिट मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी स्पीड की? दैट इज मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मीटर में मेजरमेंट करेंगे और टाइम को भी किस में मेजरमेंट करेंगे? सेकंड में। तो यूनिट तो दोनों सेम हो गई, बस केवल अंतर ये है कि स्पीड हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्यों है? जैसे मैं एक कार लिखता हूँ, एक कार की इंफॉर्मेशन देता हूँ एक रनिंग व्हीकल्स की। एक कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ए कार इज रनिंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर उसका बता रहा है, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, कि कार की स्पीड बता रहा है। दिस इज द ओनली इंडिकेशन फॉर द स्पीड। अगर पूरी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर किधर जा रही है? इन द ईस्ट डायरेक्शन, इन द ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कार। देन वी कैन एश्योर दैट द कार वी हैव come to know all the information regarding the running vehicle, that is car. So we can locate this is the speed, okay, sorry this is the velocity. यहाँ पे हम लोग ये क्या बता रहे हैं? velocity, और ये this is the speed. तो speed और velocity में आप यहाँ पे पता कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो क्या आप जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का देखा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे क्या स्पीड और वेलोसिटी भी दोनों इक्वल आएंगी? क्या कंडीशन है ऐसा कि वेलोसिटी चेंज हो सकती है स्पीड से? क्या ऐसा कुछ कंडीशन है कि स्पीड और वेलोसिटी कब इक्वल होंगे कब नहीं होंगे? तो स्पीड और वेलोसिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये स्टूडेंट्स, चलिए एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कैसे इसको आप समझोगे। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस वन phenomena? Let us take an example to illustrate clearly about the speed and velocity.
स्पीड वेलोसिटी को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये आपका घर है, ठीक है, ये पोजीशन पे, ये बी एक आपकी शॉप है जहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो आप मान लो कि आप पैदल जा रहे हो, रन कर रहे हो, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मान लो अगर 100 मीटर है इसका दूर डिस्टेंस, ठीक है, 100 मीटर, और इसको आप 50 सेकेंड्स में कवर कर लेते हो, 50 सेकेंड। तो आपकी एक्चुअल स्पीड क्या हुई? दैट इज एक्चुअल स्पीड क्या हुई? व्हाट विल बी द एक्चुअल स्पीड? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 100 अपॉन 50 तो कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड आया। अब मैं कहा कि जिस स्पीड से आप गए रिवर्स, फिर यहाँ से आप फिर वापस उसी स्पीड से फिर भाग के आए, ठीक है, दैट इज द सेम। अब आपने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? कितना कवर किया? 200। हियर इज द डिस्टेंस एक्चुअल इज 200 बिकॉज यू हैव कम हियर एंड जस्ट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द स्पीड। तो स्पीड हम फिर से काउंट कर रहे हैं। जब ये पर्सन दौड़ करके यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और ये इतने ही डिस्टेंस को 50 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। तो एक्चुअल अब फिर उसकी स्पीड क्या होगी? देखिए ऊपर तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200, क्योंकि 100 गया, फिर यहाँ से 100 फिर, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? दैट इज 100। तो फिर यहाँ से काट देंगे, देखिए फिर आया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब पर्सन, अगर मैं वेलोसिटी कंसीडर करूंगा, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, इन दैट केस पर्सन हैज velocity that is a 2 meter per second, there will be in the first condition in a straight line, in single straight. So you have to focus on the single straight line, single straight line, not in a multiple straight line। मल्टीपल की बात नहीं कर रहा, ओनली सिंगल स्ट्रेट लाइन को ट्रैक कर रहा है। तो वहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और सिंगल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। इन दैट केस स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी सेम। सो दिस वाज द फर्स्ट लाइन। सो इन दैट द फर्स्ट केस in the running 100 meter in 50 second, speed will be also 2 meter per second, and velocity also will be 2 meter per second, and we can find out the direction also whether it is going on, that is the in the east direction, because this is the in east direction, east direction की ओर जा रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ चल के फिर ये 100 अगेन नेक्स्ट 100 मीटर कवर्स इन 50 seconds, then total time will be consumed here। So that is the net displacement कितना हो जाएगा? 0। Displacement is a 0 and time will be 100। So in that case you will get the 0 velocity। अब देखिए velocity आपकी 0 हो गई। In that case velocity has become 0। velocity यहाँ पे आप देखिए 0 आ रही है आपकी, ठीक है। लेकिन स्पीड हमने each केस में देखा 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। In that case, तो sometimes don't be confused about that when the velocity will be 0, because velocity is associated in related to the displacement, okay। तो velocity कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट is just referred as the velocity and change in the distance is just referred as the speed। तो change in distance in unit time, that is speed, and change in displacement in per unit time, that is velocity। So velocity is associated with the direction, that is a vector quantity, and speed is a scalar quantity। तो स्पीड और वेलोसिटी आपको समझ में स्टूडेंट्स आ गई होगी कि स्पीड और वेलोसिटी कैसे हम समझेंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी आपको आ गई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को कैसे समझेंगे? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द टर्म्स? इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ए से, एक्सेलरेशन, ओके। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज होता है स्टूडेंट्स, दैट इज रिफर्ड एज एक्सेलरेशन। जैसे कोई कार है, वो पहले जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बाद में हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड कुछ समय बाद आफ्टर टाइम थी, उसकी स्पीड कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे निकालना है इसका एक्सेलरेशन। तो कितना हो जाएगा इसमें? देखिए
हाँ, कोई कार है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है, देखो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, टाइम विल बी गिवन टू यू, देन यू कैन कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। फाइनल से आपको इनिशियल सब्ट्रैक्ट करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल। तो देखिए ये दिस इज द फाइनल वेलोसिटी दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, ओके, and you will subtract this one, that is 20 meter per second. Time will be considered as the unit. Then you can write there 30 minus 20, कितने मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, 30 में 20 चला गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा, यूनिट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका मीटर पर सेकंड और नीचे भी सेकंड है, तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Meter per second square is the unit of acceleration, and don't forget to mention the unit. Sometimes you can observe that velocity is never increased. Sometimes it may happen that velocity may gradually decreased. कभी कभी क्या होता है कि velocity जरूरी नहीं कि इंक्रीजमेंट हो, कभी कभी क्या होता है कि velocity डिक्रीज हो सकती है। जैसे कार है, मान लो इसको रिवर्स कर दें, पहले 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, का बाद में आफ्टर सम टाइम दिस बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आप रिटार्डेशन देख रहे हो, जस्ट यू आर वाचिंग देयर इज द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कितने का हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे फाइनल से, दिस इज द फाइनल वन, 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, माइनस 30 मीटर पर सेकेंड, देन यू विल गेट माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस साइन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका माइनस साइन क्या बताता है, minus sign just referred at another point, that is a retardation. The negative acceleration is just stand for the retardation. Negative acceleration जो होता है वो आपका retardation होता है स्टूडेंट्स। तो speed, velocity, acceleration, retardation, distance and displacement, this all the things that I have mentioned here, all these things are the terms of motion. So if you understand it deeply, then you can calculate the terms of motion and you can understand the terms of motion. I hope all of you are understanding very well. Yes students, these are the terms of motions which I have explained in detail. So first of all of you have to revise all the contents properly so that you can do the best, and during live class all the things will be explained in detail. So dear students, I have explained about the term equation of motions. Equation of motion, आपको मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन बताया है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप रिवाइज कर लोगे। ऑल ऑफ यू हैव टू रिवाइज द इक्वेशन ऑफ मोशंस। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस एंड विच आई हैव डिराइव्ड बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मेथड्स। 2 मेथड्स मैंने यूज किया था, एक अल्टरनेटिव मेथड होता है, वन इज अल्टरनेटिव मेथड्स, अल्टरनेटिव मेथड, एक डायरेक्टली आप प्रूव कर सकते हो, एंड नेक्स्ट इज द ग्राफिकल मेथड। ग्राफ यूज करके ग्राफिकल मेथड्स से यूज कर सकते हैं, और ग्राफिकल मेथड्स और अल्टरनेटिव मेथड्स, 2 मेथड का यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पहले ही टर्म से मोशन से रिलेटेड है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, एंड सेकेंड इज द s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सिंबल देख लीजिए, v क्या है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी, u is the initial velocity, and a is the acceleration, just I have told you, a is the acceleration, okay, and t is the time. So in that case all the things are same here, v, a is the acceleration, s is the distance traveled in horizontal way. That these are the 3 equation of motions which I have derived, and if you have any problem then I can again prove this one. So dear students, go on deeply revision and solve the numerical problems related to the equation of motion,
and during live classes all the things will be explained in detail. Thank you student for watching today's video.